नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की आड़ी। अपने फ्रांस और अमेरिका दौरे से अब प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस भारत लौट रहे हैं। अमेरिका में उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात के ऊपर थी, क्योंकि चौथे ऐसे राष्ट्र नेता थे जिनको मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले वो बेंजामिन नेतन्याहू से मिल चुके हैं, पर सब लोग के बीच में ये चर्चा थी कि क्या जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ट्रेड, टैरिफ, इनको लेकर के जो रिश्ते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, उसमें कुछ खटास आ सकती है। पर एक बात साफ हो गई कि जो उनकी पर्सनल फ्रेंडशिप रही है, जो अपने सबसे बेहतरीन दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बताते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उस रवैये में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि जो दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। किस तरीके से वी मिस्ड यू, हमने आपको मिस किया कह के डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत किया, फिर उनके लिए कुर्सी खींची, उनको एक किताब भी गिफ्ट की, जहां तक कि किताब में यह भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। कई ऐसे समझौते भी हुए हैं, तहव्वुर राना को अमेरिका वापस भेजेगा, भारत भेजेगा, पर जो आपस की जो उनकी बॉन्डिंग है वो भी जग जाहिर इस मुलाकात में हो गई। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confident. नया स्केल और स्कोप देती है। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ भाईचारे के लिए ही नहीं थी, जाहिर सी बात है। इसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ी चीज थी ट्रेड, टेरर और टैरिफ। दोनों नेताओं के बीच ये 3 मुद्दे अहम रहे। मोदी से मिलने से कुछ ही घंटे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और कई लोगों को लगा कि इससे मामला खराब हो जाएगा, लेकिन मीटिंग में दोनों नेताओं ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में काम करने के लिए सहमति जताई। जबकि ट्रंप ने कहा था कि सबसे ज्यादा टैरिफ भारत ही लगाता है, लेकिन बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच ये तय हुआ कि आगे चलकर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस दौरान एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली कि तहव्वुर हुसैन राना, यानी कि जो 2611 का मास्टरमाइंड है, उसे अब अमेरिका भारत भेजेगा। और यही नहीं, बांग्लादेश के मुद्दे पर भी ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर ही मैं छोड़ता हूं। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually.
Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds. उधर अमेरिका में भारत को कई बड़ी सफलता मिली, लेकिन भारत में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि विदेश में भी अडानी पर बोलने से प्रधानमंत्री मोदी बचते रहे हैं, क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा, एक विदेशी जर्नलिस्ट ने उनसे एक सवाल पूछा तो उसी को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और कहा कि देखिए आप ठीक से उसका जवाब विदेश में भी नहीं दे पाए। वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अमेरिका भारत विरोधी कदम उठा रहा है, जो ये सारे समझौते हुए हैं वो भारत के खिलाफ जाएंगे। कुछ और ने यह भी कहा कि ये महज अपनी इमेज सुधारने की एक कोशिश थी। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर-थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। वो सिर्फ अपने इमेज के लिए काम करते हैं कि मैं विश्व का नेता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप के मिल्स कराएंगे और डोनाल्ड ट्रंप वापस हमारे यहाँ टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हमारा सुनने वाला है, वो डोनाल्ड है, ट्रंप है। तो ये अभी 4-5 दिन तो हमको देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा टीवी पे। देखिए, बांग्लादेश का मुद्दा जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप करना गलत है। बांग्लादेश हमारा नेबर है। अब उस बांग्लादेश में फिर एक बार आग लगी है और बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गई। ये हमारे विदेश नीति का फेल्यूर है और मोदी जी का फेल्यूर है। अमेरिका जाना चाहिए, रक्षा सुरक्षा और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। तो अड़ी में आज का सवाल है बेहद सीधा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कहा ग्रेट, तो फिर भारत में विपक्ष को उनकी मुलाकात क्यों लगी फेल?